پاکستان ایران تعلقات میں اہم پیش رفت۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کمرشل پروازیں بحال ہو گئیں۔ ایرانی ایئر لائن 100 مسافروں کو لے کر تہران سے لاہور پہنچی۔ پاک ایران کشیدگی کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان پروازیں معطل تھیں۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندے سعید احمد سعید سے۔ سعید آگاہ کیجئے۔ بالکل، پاک ایران کشیدگی میں کمی کے بعد جو فضائی راستے ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، اور آج جو ایران کے شہر تہران سے ایک فلائٹ ہے تہران جاپان ایئر کی، وہ لاہور پہنچی، جس میں 100 سے زائد مسافر تھے وہ لاہور پہنچے تھے۔ مہان ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے مسافر لاہور پہنچے تھے، تو واپسی فلائٹ مہان ایئر کی وہ لاہور سے تہران ہے وہ روانہ ہو گئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 100 سے زائد مسافر تھے جو اس پرواز کے ذریعے تہران پہنچے، جبکہ تہران سے لاہور پہنچے اور لاہور سے تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ اور یہ بھی کہنا ہے ذرائع کا کہ پاک ایران کشیدگی کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان جو فلائٹ آپریشن تھا وہ بند کیا گیا تھا، اب حالات بہتر ہونے کے بعد فلائٹ آپریشن ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید آپ کا۔ لاہور میرا ہے ان کا نہیں، پاکستان کا دل لاہور ٹوٹا ہوا ہے، اسے دوبارہ جوڑ دیں گے، مجھے 4 نہیں 1 بار موقع دیں، قوم کی قسمت بدل دوں گا، قوم کی خدمت ایسے کروں گا جیسے بیٹا والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کبھی شوباز تو کبھی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے، کیا لاہور کی قسمت میں انہی چہروں کا بار بار مسلط کیا جانا لکھا ہے؟ انتخابی سیاست کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی کارکنوں اور ووٹ کی عزت کرنے کا وعدہ کر کے نون لیگ کے کارکنوں سے ساتھ مانگ لیا۔ لاہور میرا ہے ان کا نہیں ہے، اور پاکستان کا دل ہے، مگر اس وقت پاکستان کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ مجھے 4 نہیں 1 موقع دیں، مگر میں آپ کا خدمت ویسے کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتی ہے۔ یہ سب باری وزیر اعظم رہے ہیں، کوئی 1 دفعہ تو کوئی 3 دفعہ، کبھی کوئی شوباز مسلط کیا جاتا ہے تو کبھی کوئی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے۔ کیا لاہور کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی چہروں کو اپنے بار بار منتخب کروانا ہے؟ میں ان کے کارکن سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں، میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں۔ میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آئے میرے ساتھ دے، میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں۔ نفرت کی سیاست ہے، غداری کا سرٹیفکیٹس بانٹنے والے کی سیاست ہے، جو فتویٰ دلوانے والے کی سیاست ہے۔ لاہور میں نون لیگ کو الیکشن سے پہلے ہی بڑی کامیابی، NA 119 سے پی ٹی آئی امیدوار مہر وسیم مریم نواز کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ مہر وسیم نے مریم نواز سے ملاقات کی اور ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل ہوئے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مہر وسیم ترقی کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ نون لیگ اگلے 5 سال عوام کی خدمت کا ایجنڈا بنا چکی ہے۔ 4 سال نااہلی کا اثر پورے پاکستان نے بھگتا، پنجاب کو تباہ کیا گیا، نوکری رشوت سے ملتی تھی، گھروں میں گیس نہیں، خواتین رو رہی ہیں، سیاسی مخالفین کو رلانے کی خواہش رکھنے والوں کی وجہ سے پورا پاکستان رو رہا ہے۔ عوام جانتے ہیں کام کس نے کیا، سیاسی انتقام کس نے لیا، جھوٹ کس نے بولا۔ 8 فروری کا سورج نون لیگ کی فتح کے ساتھ طلوع ہوگا۔ یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ حمزہ شہباز کا NA 119 لاہور میں جلسے سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا، شہباز شریف نے ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ہم چاہتے تو تماشا دیکھتے رہتے اور کچھ نہ کرتے۔ 8 فروری کا الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ 3.5 سالوں میں عمران نیازی نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا، ملک دیوالیہ ہوتے ہوتے بچا۔ ہم نے صرف پاکستان کی ترقی کو اپنا گول بنایا، ہم بھی چاہتے تو
हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, IMF के प्रोग्राम को बहाल किया। मायूस होने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जब पूरे पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी तो बिजली के 100 यूनिट नहीं, इंशाअल्लाह 300 यूनिट को मुफ्त करेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए। 8 फरवरी के बाद नून लीग हुकूमत बनाएगी। एक शख्स को साजिश के जरिए मुसल्लत किया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं 2018 के नताइज से पहले हमें मालूम था क्या होने वाला है। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी के बाद मरकजी जमीयत अहले हदीस के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। 12 की इलेक्शन में भी हमें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का रिजल्ट सुनने से पहले हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। दोबारा एक साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसकी मजाज में जमहूरियत नहीं है। मेरे खिलाफ एक ऐसा घटिया और घिनौना जिसकी सजाए मौत थी। शेर और उकाब साथ साथ हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है। जहांगीर तरीन की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा IPP अवाम से किए वादे वफा करेगी। NA 149 मेरा घर है। मेरा हवाई घर इसी हल्के में। इस हल्के में आने का मकसद इस हल्के की खिदमत करना है। सिर्फ और सिर्फ इस हल्के की खिदमत, इस हल्के के अवाम की खिदमत करना है, इस हल्के के मसलों को हल करना। सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि मईशत को ऐसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे मईशत में चीज़ें की जाए, स्टेप्स लिए जाएँ जिनसे महंगाई ख़त्म हो जाए। रोज़गार के बगैर मुल्क नहीं चलते। ये जो नौजवान नस्ल हर साल कितनी तादाद में आ जाती है रोज़गार नौकरियों की खातिर, इनके लिए नौकरियां होना ज़रूरी है और हम करके दिखाएंगे। और हमने पहली अव्वलीन जो हमने अपनी पॉलिसी बनानी है वो इस पर कि मईशत चमके। मईशत में लोग आके इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्ट करें, कामयाब हो, ताकि लोगों को रोज़गार बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले। और मईशत ही तो मुल्क की जिम्मेवार होती है। 8 फरवरी के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। अलीम खान की खानेवाल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराती। 3-3 मरले के जो प्लॉट हैं वो अपने उन लोगों को देंगे जिनके पास मकान नहीं है, और इंशाल्लाह उसके लिए साथ उनको कर्जा देंगे ताकि वो अपना मकान तमीर कर सके। कच्ची आबादियां जो हैं जहाँ पे हैं, उनके जो शहरों में कच्ची आबादियां, उनके लिए हम तमाम कच्ची आबादियों के लिए ये प्रोग्राम बनाया है कि उधर हम फ्लैट्स तमीर करेंगे ताकि उनको एक बाइज्जत तरीके से एक अच्छा घर मिल सके। अभी जो कच्ची आबादियां वो बहुत बुरे हाल में लोग रह रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, मेरी आवाम ने हम पे एतमाद किया, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये प्रोग्राम जो कह रहे हैं आज सबसे बड़ा इसका सबूत ये है कि दूसरी पार्टियां भी ये मंशूर जो हैं वो आपके सामने लेके आ रही हैं। शदीद सर्दी में भी मोहसिन स्पीकर वज़ीर आला पंजाब का रात गए काबीना के साथ कुर्बान पुलिस लाइन्स लाहौर का दौरा। कुर्बान लाइन्स में पुलिस की रिहाइशगाहों की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी को IG पंजाब ने मंसूबे पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने जारी कामों का मुआयना किया और आला मयार बरकरार रखते हुए फिनिशिंग वर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा कि 31 जनवरी से कबल अपार्टमेंट्स के 3 फ्लोर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने रात के काबीना के साथ कुर्बान पुलिस लाइन्स का दौरा किया है और पुलिस की रिहाइशगाहों की तामीर पर पेशरफ्त का उन्होंने जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब का सहाफ़ियों को 7 और 3 मरले के प्लॉट देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि अहल सहाफ़ी 28 जनवरी तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। प्लॉटों के लिए पीर से दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी। कोशिश है कि 8 फरवरी से पहले बैलेटिंग हो जाए। सहाफ़ियों की बहबूद के लिए तवील मुद्दती मंसूबों पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला का पंजाब का सहाफ़ियों से किया गया वादा पूरा हो गया। मोहसिन नकवी ने प्रोफेशनल सहाफ़ियों को रिहायशी प्लॉट्स देने का ऐलान किया।
मोहसिन नकवी कहते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और कैमरामैन को मजमूई तौर पर 3,300 प्लॉट्स दिए जाएंगे। रिपोर्टर्स को 7 मरले का प्लॉट दिया जाएगा, जबकि कैमरामैन और फोटोग्राफर को 3 मरले का प्लॉट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं और फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है और ये 2300 प्लॉट होंगे 7 मरले के और 3 मरले के 1000 प्लॉट होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा प्लॉट के हसूल के लिए अहलियत का इश्तिहार कल 22 जनवरी को अखबारात में दिया जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़ी बरादरी को प्लॉट के हसूल के लिए तरीक़ेकार से आगाह करेगी। हुकूमत को करीबन साल हो चुका है। अदराक है कि सहाफ़ियों की अक्सरियत सफ़ेद पोश है, मुश्किल से गुजारा करते हैं। सहाफ़ियों की रिहाइश एक बड़ा मसला है। कुछ क्राइटेरिया है जो तकरीबन मेजॉरिटी लोग क्वालिफाई करेंगे उस पर अप्लाई करने के लिए, और उस पे जो रिपोर्टर्स और जो चाहे वो प्रिंट के चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो 7 मरले के प्लॉट पे क्वालिफाई करेंगे और कैमरामैन और फोटोग्राफर जो हैं वो 3 मरले के प्लॉट पे क्वालिफाई करेंगे। ये रूडा ने अपना बहुत अच्छी फेज में जगह रखी है। 2 एकड़ ज़मीन है, इसकी आखिरी डेट 28 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैलेटिंग हो जाएगी, मेजॉरिटी लोग निकल आएंगे उसमें। इसमें हमारी 3-4 चीज़ें हैं कि वो खैर आपको पूरा फॉर्म है वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा कल या परसों से। कल आई थिंक अखबार में भी ऐड दे रहे हैं। रूडा वाले आपके ऊपर इसके ऊपर आपको डिटेल ब्रीफिंग अलहदा देंगे ताकि जो एक दफ़ा क्वालिफाई कर जाते हैं उन सबको बुला के। लाहौर समेत पंजाब भर के सहाफ़ियों के लिए रहाइश एक बुनियादी ज़रूरत है। मोहसिन नकवी कहते हैं कोशिश है कि बैंक ऑफ पंजाब सहाफ़ी बरादरी को घर बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहम करे। अगर गुंजाइश बनी तो फ़ेज़ 2 भी शुरू करेंगे। बोले उनके लिए सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब के नहीं बल्कि पंजाब के तमाम सहाफ़ी अहम और बराबर हैं। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, सेक्रेटरीज हाउसिंग, इत्तलात, CEO रूडा, DGPR और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। रुख करेंगे कराची का एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। तलब है राहे वफा अपनी के इंतहाए जुनू से है। इब्तिदा अपनी वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, दोस्तों, भाइयों, अजीज तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ऐलाने कराची, तुम्हें सलाम। कराची, अस्सलाम वालेकुम कराची, कि तुमने कौम की इज्जत रख ली, तुमने कौम की इज्जत रख ली। आज वादा था MQM के कारकुनों का कि 8 फरवरी को नहीं 21 जनवरी को फैसला आएगा। आज फैसले पे मोहर लग गई है। कराची, अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। अल्लाह की आप पर सलामती हो। सलामत रहे ता कयामत रहे। कराची की सलामती का मतलब, कराची की सलामती का मकसद पाकिस्तान की सलामती है। कराची की सलामती पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। पाकिस्तान की खुशहाली कराची की खुशहाली की बदौलत है। कराची और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। लिहाजा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उस पर वाजिब है कि कराची से भी मोहब्बत करे। जो पाकिस्तान का खैर खा है वो कराची का भी गमखार होगा। और हम भी कराची से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम कराची की परवाह इसीलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान की परवाह करते हैं। और कराची ने आज अपना हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान ने आज, कराची ने पाकिस्तान के तमाम गरीबों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं,
मज़ार कायद आज़म पर कायद आज़म के रूबरू पाकिस्तान बानिए पाकिस्तान बाबा कौम के रूबरू हम आज इसलिए आए हैं कि हम अपने एक वादे, एक इरादे, एक नारे की तजदीद कर सके और लाखों के मजमे की गवाही के साथ कर सके कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। कराची लो हम आ गए हैं, इस मुल्क के बेटे, इस मुल्क के वारिस, तुम्हारे निगहबान और पासबान। और हम आ गए हैं पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, पहले से ज्यादा मजबूत, मुतहरिक, मुस्तैद और तुम्हारे हुकूक की नई और ताज़ा जद्दोजहद के लिए। कराची ने आज अपना हक अदा कर दिया है और हम आज अपने वादे को हम आज एक नया वादा और इरादा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। कराची हम आ गए हैं, हाँ हम आ गए हैं, लोग हम आ गए हैं। जब हम आते हैं तो जज्बे और निखर जाते हैं, क्योंकि हम अपने हाथों पे सर लेके आते हैं। जब हम आते हैं तो हाकिम वक्त बिगड़ जाते हैं, अब उनके बिगड़ने का वक्त भी खत्म हो गया है। आज कराची ने एक हद फासिल कायम कर दी है, वक्त आ गया है सब बंदी का, नए मार्के का, मोर्चे तामीर करने का, एक नई जंग करने का, एक सब बंदी करने का, जिसके एक तरफ 75 साल से पाकिस्तान पे काबिज गासिब जालिम हुक्मरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम है। मैं मुबारकबाद देता हूं कराची की अवाम को, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले हक परस्तों को, कि आज के जलसे ने पाकिस्तान के अंदर अवाम की हुक्मरानी के एक नए और ताज़ा ख्वाब को ताबीर दी है। इंशाअल्लाह ताला अब हम देख पा रहे हैं वो मंजरनामा। हमने एक नई सबबंदी, एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मजलूम है, एक तरफ हाकिम है, दूसरी तरफ महकूम है, एक तरफ 2200-2300 खानदान है, दूसरी तरफ 22-23 करोड़ आवाम है। एक तरफ मरात याफ्ता तबका है, दूसरी तरफ एक तरफ जुल्म सितम तबका है। और इंशाअल्लाह ताला इस जंग में पाकिस्तान की आवाम की जीत होगी। हमारा अब मंजिल देख पा रहे हैं, सुनो आवाज दे रही है मंजिलें, राहें पुकार रही हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है, सुनो कि राहें पुकारती हैं। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है, जो रात छाई थी रास्तों पर वो अपनी मौत आप मर गई है। सदा ये यज़दा की आ रही है, चलो कि मंजिल बुला रही है।